Now I'm taking the next topic. Next topic is statistics beta. In stats, we required only formulas. So I am discussing that. हाँ, Sir, beginning से start कर रहा हूँ बेटा. sir, Today is 6/10/21, chapter 15, statistics. Right. Yes बेटा, yes बोलो. सर जो लिमिट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 सर उसमें 23 to 32 तो हमारे सिलेबस के क्वेश्चंस है ही ना. 22 to 33. यस यस यस, वो सिलेबस में तो है, बट हमने नहीं दिया. मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस टॉपिक पे हमने नाम डिस्कस कर रहे हैं अभी, बिकॉज इन सम ऑफ द पॉइंट वी रिक्वायर द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आल्सो. ठीक है, तो हम लोग इस जो रेस्ट पार्ट है सेकंड टर्म के सिलेबस में कंप्लीट करेंगे. ठीक है बेटा, तो बोलो सर भाई. 23 to 32 सर 23 to 32. गॉट इट बेटा, ये पॉइंट आई गॉट इट बेटा. मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ. वो पार्ट जरूर सिलेबस टर्म 1 का है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे फ्रेम आउट करना है हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी, जब तक कि हमको इसके सैंपल, क्योंकि सीबीएसई ने इसका सैंपल कॉपी हमें अभी प्रोवाइड नहीं किया है 11th का. तो जब तक इसके गाइडलाइंस नहीं आएगी तब तक, अदरवाइज ये टॉपिक है बेटा, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, बट वी डोंट हैव द ओके ऑप्शन कि कैसे क्रिएट करें एमसीक्यू में. तो मैंने तो आपका सिलेबस रिड्यूस किया है एक पॉइंट से, 23 से 32 क्वेश्चन मैंने हटा दिए, तो आपके पास तो कम हो गया कंटेंट करने के लिए इसमें. ठीक है, यस सर. क्लियर. चलो, अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं बेटा. हाँ जी बेटा. Hello, sir. So, can you हाँ जी explain बेटा. question number 10 and 12 of the exercise? 13.1 बेटा. Yes, sir. 13.1 क्वेश्चन नंबर 10 एंड, कैन यू रिपीट इट again? 12. Question number 10 and 12, right? Taking this one beta. Limit z approaches 1. See, question number 10, exercise 13.1. Question is limit z approaches 1, z raised to the power 1 by 3 minus 1, z raised to the power 1 by 6 minus 1. Right? This is the question. Z 1 by 6, right? Now see beta, I have given you a formula. Limit x approaches a, x raised to the power m, a raised to the power n upon x raised to the power m, a raised to the power m is equal to n by m, a raised to the power n minus n. I have given you this formula beta, right? Second formula tha, I think ये in numerical form beta. Mention this formula only if it is a subjective question. Otherwise, directly apply this one. So according to this, we have n is 1 by 3. I can write 1 by 3 power to 1, and for this 1 by 6. So now it is matching with this our identity beta. So we can apply directly. So in place of n, we have 1 by 3. In place of m, we have 1 by 6. So 1 by 3 divided by 1 by 6, 1 raised to the power, because in place of a we have 1, right? So it is 1 by 3 minus 1 by 6. 1 raised to the power anything is 1, right? So 1 by 3 divided by 1 by 6 equal to what? 2. This is the answer. Is this clear beta? Online Yes. beta, who out is this, right? Question number 12. Question number 12 is limit x approaches minus 2. Limit x approaches minus 2.
1 by x plus 1 by 2 upon x plus 2. Now see, if we put directly limit x tend to minus 2, denominator part becomes 0. Then anything divided by 0 is what? Not defined. Otherwise, it is clear this is 0 by 0 form basically. And what we know, what is the terminology used for this? Indeterminate form. Because 0 by 0 is what? Indeterminate form. But हमारे जो CBSE का system है, उसमें denominator, if denominator is 0, it means it is not defined. We have to try to avoid this situation. मुझे सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करना है कुछ simplification, LCM, factorization, rationalization, whichever kind of the fraction we have, expression we have, that tool we have to apply with it, right? So here I think LCM 2 plus x upon 2x, and in bracket it is x plus 2. After LCM, simplification is this. Now 2 plus x, and this cancelled. So next step is limit x approaches minus 2, 1 upon 2x. Now if we put directly minus 2, denominator is not 0. See? So answer मेरा directly हो गया 1 by 4. Right बेटा? Any other question बेटा? सर हाँ जी बेटा बोलो. सर क्वेश्चन नंबर 10 में आपने ये फॉर्मूला लगाया x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x रेज टू द पावर m माइनस a रेज टू द पावर m. बट सर फॉर्मूला तो था ना अपॉन में x माइनस a. हाँ बेटा मैंने एक और फॉर्मूला दिया आपको, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने एक और फॉर्मूला दिया बिकॉज अदरवाइज दिस इज ए क्वेश्चन बट वी कैन यूज दिस एज एन आइडेंटिटी. आई कैन यूज फॉर दिस एज एन आइडेंटिटी बिकॉज आपकी जेई में है बेटा ये फॉर्मूला, आपकी जेई में यहाँ बेटा. मैंने क्यों लिया? क्योंकि मेरे सीबीएसई में नहीं है. बट दिस टाइम यू हैव एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो व्हाई वी आर टेकिंग सो मच ऑफ लेंथी स्टेप बेटा? हम क्यों करें सॉल्व? जब अगर किसी का ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है बेटा, जो टाइम स्लॉट भी आपको मिलेगा 1 मिनट रीडिंग का, उसी के अंदर सॉल्यूशन भी करना है आपको. तो जिस तरह की जितने शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाए उतना बेटर है आपके लिए, ठीक है. बट ये फॉर्मूला है आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई में, बट वी कैन अप्लाई दिस बेटा इफ इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर इन सीबीएसई ऑल्सो, ठीक है. अदरवाइज अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता बेटा पेपर तो मैं आपको ये नहीं देता, ये फॉर्मूला देता ही नहीं मैं आपको. किसको? फिर नॉर्मल मेरे पास फॉर्मूला तो वही है, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a. मुझे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया बेटा, ये आएगा क्या फॉर्मूला था इसका? n a n माइनस 1. दिस फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई. तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर ये अप्लाई करना है? तो मुझे इसको मैनिपुलेट करके इसका न्यूमरेटर भी इस फॉर्मूले से मैच करना है, डिनोमिनेटर भी मुझे मैच करना है. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एक स्टेप बताता हूँ. z माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, राइट. देखो ये बन जाएगा आपका z रेज टू द पावर 1 by 3, 1 रेज टू द पावर 1 by 3 अपॉन z माइनस 1 अपॉन 1 रेज टू द पावर 1 by 6 अपॉन z माइनस 1. What step I have taken beta? Divide numerator and denominator by z minus 1. Now this is your limit formula, z approaches 1, and this is your limit formula, z approaches 1. In both numerator and denominator you have to apply this formula. After simplification you will get this answer, और ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा. इसको करोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x minus a. In numerator apply this formula, in denominator apply this formula, you will get this formula, ठीक है. और मैंने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ यूज कर, ठीक है भाई. बोलो किसका डाउट था ऑनलाइन? जो आपने फॉर्मूले में लिखा सर n अपॉन m इनटू a रेज़ टू द पावर n माइनस m है ना वो, या फिर n इनटू m है? नहीं n माइनस है बेटा, n माइनस m है. 11 था क्लियर है बेटा? आपका ये डाउट क्लियर है? किसका था बेटा ये? यस ऑनलाइन बेटा, ठीक है. अब एक और 11 क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, डाउट ही है वो भी. क्वेश्चन नंबर 11 is ax square plus bx plus c. This is limit
x approaches 1, ax square plus bx plus c upon cx square plus bx plus a, right? If we put x approaches 1 to denominator, it is not 0, not equal to 0. तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, डायरेक्ट 1 पुट करो, आपका आंसर आ गया. If we put x equal to 1, numerator is a plus b plus c. So If we put x equal to 1 in denominator, plus b plus a, answer is 1. ठीक है, डायरेक्ट. क्लियर है? देखो एक और तरीका भी है, शायद आप में जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, they have this topic you have done in that there. एक वो मेथड पढ़ा होगा आपने, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है, बताया ना बेटा? पर उसके लिए बेसिक क्या, आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए. जैसे ही आपको वो आ जाएगी, आपके एनसीईआरटी के और आप सीबीएसई लेवल के कई क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पलर देखोगे, वो क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिवली करें तो एक एक 1.5 पेज में जाएगा, सॉल्व करते हैं. लेकिन डिफरेंशिएशन अगर वो आता है और एल हॉस्पिटल रूल आता है आपको, आप अगली लाइन में उसका आंसर लिख दोगे इन द नेक्स्ट लाइन. तो अगर ये सिलेबस में होता पूरा, तो मैं भी आपको वो एल हॉस्पिटल रूल बताता, अदरवाइज मैं कभी नहीं बताता आपको. क्योंकि मेरे सब्जेक्टिव में क्या करते हैं बच्चे फिर उस केस में, कि अब मुझे ये शॉर्ट ट्रिक आती है, डायरेक्ट वही लगा देते हैं, लेकिन उसमें आपको आंसर के नंबर मिल जाएंगे, बीच के स्टेप्स के नहीं मिलेंगे. ठीक है ना बेटा? नहीं, किसी से भी कर लो, डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे. आप एल हॉस्पिटल लगा दोगे तब भी वही आंसर आ जाएगा. ठीक है ना? एल हॉस्पिटल आपके एक लेंथी क्वेश्चन को सिंपल कर देते हैं, बस. ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको सॉल्व कैसे करो, और 0 बाय 0 फॉर्म भी आ रही है, चलो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम लोग वो करते हैं. एल हॉस्पिटल एज ए टीचर हम भी अटक जाते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, हम उन क्वेश्चंस को फिर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उस लेवल पे वो अलाउड है. यही वगैरह ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, आपको जितने जिस चीज की जितनी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए उतना करो आप. और वहां तो बताते हैं मेरे ख्याल से कई चीजें, फंक्शन बताएंगे आपको, ग्राफिकल अप्रोच पे ध्यान रखना बेटा. जेईई में वो ग्राफिकल अप्रोच से आप बहुत बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना. तो जब भी वो ग्राफ पढ़ाएं आपको, ठीक है ना, सिंगेज की एक बुक आती है, प्ले विद द ग्राफ, प्ले विद ग्राफ करके सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है वो, बहुत बढ़िया. आप पढ़ो उससे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी अगर आप उसकी मतलब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो. ग्राफिकल से बहुत सारी चीजें, हमारा ना सीबीएसई में सब्जेक्टिव हो गया, नहीं तो ये सब चीजें मैं पहले आपको यही डिस्कस कर देता. यही में जाके इतना वो करना, मेरे पास मटेरियल नहीं है, नहीं तो कंटेंट तो यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ सारी चीजें. मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल उनके पास है. मेरा टारगेट वो, मुझे अभी जैसे आज मुझसे पूछा जा रहा है कि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो जितना जिस स्पीड से हम पढ़ा सकते हैं वही स्पीड से पढ़ा रहा हूँ. एक दिन में आपको 4 दिन का खाना कैसे खिलाऊंगा, नहीं है पॉसिबल. तो मैं तो जो तरीका है उसी से पढ़ाता हूँ बेटा, चाहे 10 दिन लेट हो जाए. और कोई डाउट बेटा लिमिट्स का बताओ भाई? ऑल डन? चले बेटा नेक्स्ट बेटा. सर टर्म 1 के लिए फिर सिर्फ ये 12 क्वेश्चन ही करें? 12 क्वेश्चन इज द बेस बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टिल 12th क्वेश्चन बेटा. 12th and the supplement also, exponential, logarithmic formula I have given you, we have discussed all the questions. In supplement that exercise is named as 13.2 I think, right? 13.2 के हमने सारे क्वेश्चन किए उस टॉपिक से रिलेटेड, और वो है. अभी थोड़ा सा टाइम मुझे मिलेगा ना तो मैं आपको वर्कशीट भी सेंड करूंगा. अदरवाइज इफ यू हैव एनी रेफरेंस बुक, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टिल 12th एंड सप्लीमेंट पार्ट बेटा, राइट? इतना क्वेश्चन करना. चलो अब मैं टॉपिक ले रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स. इसमें पहला टॉपिक है मीन. मीन डिनोटेड बाय व्हाट? x bar. This you have done in class 10, right? So mean, formula for mean is what beta? There is a two things beta for ungrouped data. Ungrouped data. What is ungrouped data? Where only observations are given. जैसे मैं इस क्लास की एज की या वेट की बात करूं, वेट 40 kg, 50 kg, 30 kg, 20, 80, 90, कुछ सिस्टमेटिक नहीं है ना, ठीक है ना? जब सिस्टमेटिक नहीं है, दैट इज नोन एज अनग्रुप डेटा, राइट? और अनग्रुप डेटा में फॉर्मूला क्या होता है? इफ योर डेटा इज x1, x2, x3, x4 up to xn, this is the data, right?
So formula in this case is x bar is equal to x1 plus x2 up to xn divided by n. This is the formula for finding the mean, right? Or in the compact form, we can write this formula as x bar is equal to summation xi, I from 1 to n divided by n. What is n here, beta? Number of observation. ठीक है? अगर इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हमने एज या वेट को ऐड किया, डिवाइड बाय 40 करेंगे तो इस क्लास की एवरेज कह लो या मीन आ गया. ठीक है? तो दिस इज दी फॉर्मूला. और कई बार ये लिखा नहीं होता 1 to n, but it is understood. This formula can be written as xi by n. ये वाला फॉर्मूला भी बेटा ठीक है. ये अंडरस्टूड है बेटा. अगर यहाँ i दिया है, सबस्क्रिप्ट i है, ये सबस्क्रिप्ट मतलब इस तरीके से 1 to n. This is subscript. This is indicating that first observation, second observation up to nth observation का sum करना है, divided by the number of observation, right? And this is known as ungrouped data. Next is for mean. नोट करो बेटा, मैं क्योंकि ना बोर्ड छोटा है और मुझे बार बार रब करना पड़ेगा, तो साथ के साथ नोट करो और कोई डाउट आता है साथ के साथ पूछते जाओ. Done? Now this is a mean for ungrouped data. अब मैं ले रहा हूं ग्रुप डेटा. अब ग्रुप डेटा का क्या मतलब है? When we have a data given in arranged form, systematic form. So this is ungrouped data. Second is group data. And grouped data is divided into discrete and continuous. Discrete and continuous, right? So अब ये क्या मतलब है? When you are provided with this data xi and fi, एक xi का कॉलम गिवन होगा, एक fi का कॉलम गिवन होगा, then what is the formula in that case? This is known as discrete beta. This is known as discrete frequency distribution. पूरा नाम सुन लो बेटा, discrete frequency distribution. ठीक है? और continuous frequency distribution. देखो इसके अंदर एमसीक्यू में क्या बना सकता हूँ? इतने बड़े बड़े डेटा फॉर्म में क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं बनते बेटा. मैं क्या करूंगा, इन फॉर्मूलाज को आपसे पूछूंगा एमसीक्यू में फॉर्म करके. ठीक है ना? मैं कुछ भी दे दूंगा. दिस इज द फॉर्म ऑफ विच डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा, कुछ भी नाम दे दूंगा, आपको पहचानना. मैं अब आपको लिख के दे रहा हूँ. ग्रुप डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. ठीक है? Discrete and continuous. Discrete मतलब when we have xi and fi is given only, right? So in this, what is the formula? X bar. I have a formula summation fi xi divided by summation fi, right? Now, so what is the requirement for solving this? This is given, but we have to find out a column which is indicating fi xi. यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉलम, राइट? एंड वी नीड द समेशन. इसका एडिशन चाहिए मुझे fi xi, एंड इसका समेशन चाहिए बेटा. दिस इज नोन एज समेशन fi, राइट? एंड दिस समेशन fi is also known as capital N. Remember this thing, because in some formula they will write capital N. And the meaning of capital N is here summation of frequencies, right? So this formula you find in some books or in NCERT like this way also, fi xi divided by capital N. This where you can write here where capital N is summation fi. This is the formula. Done better? Okay. Next का जाओ continuous. What is continuous distribution? Continuous frequency distribution. This is the example of discrete. Continuous is what? When we have given class interval and fi.
नो ना क्लास इंटरवल बेटा. सपोज 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे दे दिया 1 2 कुछ इस तरीके से. तो दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जब क्लास इंटरवल गिवन होती है तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. Here, what I have to find out first? Xi. What is the way to find out the Xi column? Mid values, right? This is what? Mid value of class interval. 11 की दे जाओ हाथ के दीदी कितने बच्चे अटेंडेंस देनी 11 थे 2 2 4 3 7 बच्चे. ठीक है. अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट 7. ठीक है. अटेंडेंस ले लो अभी दे दो. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अटेंडेंस प्लीज बेटा. आकांक्षा शर्मा ऑनलाइन बेटा. अटेंडेंस प्रेजेंट. ओके. आरव ग्रेवाल. आरव ग्रेवाल एब्सेंट. आरव शर्मा. अग्नीश. अग्नीश इज प्रेजेंट. ऐश्वर्या. Present, sir. ऐश्वर्या प्रेजेंट. अक्षिता. प्रेजेंट सर. अमन. अमन. अंशिका. अंशिका. अरुमिता. Present, sir. अरुमिता present. आर्यन. आर्यन. आयुष. आयुष शर्मा. भव्य. भव्य भारद्वाज बेटा. भव्य मिश्रा. प्रेजेंट सर. दमन. दमन present. देवांश. देवांश. दिशिता Present, sir. present. गैलेक्सी. गैलेक्सी present. गौतम. गौतम कुमार हो बेटा. नहीं गौतम करो बेटा. राइट. गौतम कुमार. प्रेजेंट सर. हिमांशु. प्रेजेंट सर. present. जयंत. प्रेजेंट जयंत. सर. present. प्रेजेंट सर. कनक यादव. प्रेजेंट सर. कान्हा. कान्हा. कुंजल. Present, sir. लक्ष्य. प्रेजेंट सर. लिनॉय. प्रेजेंट सर. मानव. प्रेजेंट सर. मानव कौशिक. प्रज्ञा. उदित. अरे किसने प्रेजेंट बोला था ये मानव. यस सर. मानव कौशिक सर. मानव प्रेजेंट. प्रज्ञा. ऋषभ गिरसा. रोहन. साहिल बेस्ट. प्रेजेंट सर. साहिल बेस्ट प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. साहिल शर्मा. कोई नहीं आपके दिमाग में रहे. आप ये कह रहे हो जिसके बेसिस पे ग्राफ बना सकते हैं. अच्छा चलो ठीक है. वो बात नहीं. टर्मिनोलॉजी पता होना जरूरी है आपके इसमें. ठीक है. ये क्लियर है बेटा यहाँ पे. अब इसके बाद फॉर्मूला देखो एक्स बार का इन दिस केस एंड यू हैव लर्न आई थिंक बाय दिस नेम शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन राइट. एंड व्हाट इज दैट. दैट इज a plus summation fi di divided by summation fi into h. बनाएंगे ना. बनाएंगे ना. बनाएंगे ना राइट. तो अब क्या होता है वो डेविएशन देखो. d क्या है. तो व्हाट इज d. आपके पास आपने इसको कन्वर्ट करके ये बनाया. यहाँ सपोज कर लो 4 5 6 7 ऐसे कुछ आ रहा है. और मिडल वैल्यू ऑफ xi कॉलम
You treat that as what? A. What is the name of this A, beta? Assumed mean. So write down the meaning of this. Meaning of all the alphabet I have used in the continuous discrete distribution, beta. Meaning of capital A is assumed mean. Assumed mean. Usually the middle value of xi column. Right, beta? This I have written here. What is exactly this is? Now di. Di is xi minus a by h. This is the value of di. What is h here? H is what, beta? Class size. Class size means, in this case, class size is what? 10. Clear, beta? And summation fi, you know, beta, what is this? और तो कोई है नहीं मेरा letter. Clear, beta? And this is known as the shortcut method of finding the mean. This is the formula, beta. किसमें होता है बेटा? तभी तो मैंने h वहां मल्टीप्लाई किया. चेक कर लो, हो सकता है मैंने भी गलत लिखा हो यार. वन सेकेंड, एक बार कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, शायद हो इसमें भी फॉर्मूला वो. सर डी सिर्फ एक्स ए माइनस ए नहीं होता? नहीं होता है बेटा. मेरा सही है बेटा, मेरा सही है. बिकॉज अगर आप देखो सी, अगर आप यहाँ पे h नहीं लिखोगे, अगर यहाँ h नहीं लिखोगे तो यहाँ मत लिखना, खत्म हो जाएगा. ठीक है ना? अगर आप यहाँ h नहीं लिखोगे तो यहाँ मत लिखना. मैंने वहां h लिखा, मैंने और छोटा कर दिया. ये दिस इज h एंड दिस इज h. राइट बेटा? ये मैंने और छोटा कर दिया. कुछ बुक्स में i लिखा होता है, i क्लास साइज. और इकोनॉमिक्स वालों का स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ और सी है शायद, स्मॉल सी. तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैट्स में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स मिलते हैं. बोलो क्लियर बेटा ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ. और 5-7 मिनट और ले रहा हूँ बेटा मैं आपके. बेटा जिनका केमिस्ट्री पीरियड था फर्स्ट सेकंड कंटीन्यूअस होगा केमिस्ट्री में. ठीक है, ध्यान रखना इसका. ऑनलाइन बच्चों आपके पास ऑलरेडी मैम ने शायद भेजा हुआ है लिंक. सर सेकंड वाली क्लास भी मैथ्स की है. मैंने केमिस्ट्री वाली मैम की पहला पीरियड ले लिया. ठीक है, अब कोई और लेगा. ठीक है, क्योंकि मैंने ना वो प्रैक्टिकल जो मेरा एग्जाम है ना उसको मैंने एडजस्ट किया था मतलब. राइट बेटा? नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू इज मीन डेविएशन. मीन डेविएशन बेटा, denoted by capital MD. Right? Now mean deviation, first topic is mean deviation about an arbitrary point. Arbitrary point. Mean deviation about arbitrary point. And formula is MD. Arbitrary point I am taking small a. Suppose स्मॉल ए मतलब वो कहते हैं मीन डेविएट करके बताओ इसका अबाउट 5 नंबर. ठीक है, 5 नंबर से बताओ. तो मीन डेविएशन अबाउट ए इज डिनोटेड बाय दिस एंड फॉर्मूला इज मॉड xi माइनस a डिवाइडेड बाय n. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट समेशन ऑफ दिस. क्लियर हुआ कैसे? ये मैंने आपको बताया फॉर अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप डेटा. ठीक है, आपको याद है मैंने xi आपको बताया था. अब आपको क्या करना है, जो भी xi दे रखा है 1 2 3 4, इन्होंने बोला xi माइनस a निकालना है. 1 माइनस a, 2 माइनस a, इस तरीके से आप इसको ऐड कर लो समेशन एंड दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वो मीन डेविएशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट आता है. राइट, नेक्स्ट आ जाओ बेटा. मीन डेविएशन अबाउट मीन, दूसरा पॉइंट है ये. सेकंड पॉइंट मीन डेविएशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट का फर्स्ट. अब है सेकंड पॉइंट मीन डेविएशन अबाउट मीन. तो मीन आपको कैसे निकालना है? ये डेटा दे रखा है, इसका मीन कैसे निकालते हैं मालूम है बेटा? यहां से x बार निकालो
समेशन एक्स आई बाई एन करके। जैसे ही आपका एक्स बार आ जाएगा उसके बाद आप ये ए की जगह एक्स बार कर दो, आप एक्स बार, ठीक है। फिर इसका समेशन निकालो। हाँ जी बेटा बोलो। सर फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हमारा ए क्या था? ए इज एन आर्बिट्री पॉइंट बेटा। क्वेश्चन में बोलेंगे कि फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट 5, दैट 5 इज योर ए। किसी दूसरे क्वेश्चन बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट 10, दैट 10 इज योर ए। आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी कहीं से डेविएशन होता क्या है? डेविएशन होता है आपके एवरेज को डेविएट करना। अगर इस क्लास में बच्चों के 80, 90, 95, 98, 92, 91 उसका एवरेज निकाला तो एवरेज स्कोर 90 आया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ अगर 5 नंबर का ऊपर नीचे हो जाता तो क्या डेविएशन आता है? एवरेज में से हर बच्चे के मतलब डेटा में से 5-5 नंबर माइनस कर दो। डेविएशन का मतलब खाली रिड्यूस करना नहीं है, आपका इंक्रीज करना भी है। तभी मैंने यहाँ पे आपका ये लिया है बेटा, मॉड लिया है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस होता है ये डेविएट करने का मतलब है। अगर सपोज करो जैसे ये ईयर हुआ, कोरोना पीरियड था, सब बच्चों के 95, 90, 99 कुछ ऐसे नंबर आए थे, ठीक है। अब अगर वो एग्जाम होता तो हम गैस करते जिन बच्चों के 95, 96 आए यार वो बच्चे 100 वाले बच्चे थे। अगर वो एग्जाम होता तो 100 लेके आते, उन्होंने इतनी मेहनत की है, ठीक है ना। तो लेकिन अब वो क्या है, अब जब स्टैट्स निकालता है तो क्या कहता है कि नॉर्मली अगर बच्चा जिसके प्री बोर्ड में 90 आए हैं वो बच्चा 100 तक ले आता है। स्टैट्स किस पे चलती है बेटा? प्रेडिक्शन पे चलती है। तो अगर 100 में से 90 बच्चों के जो अच्छे बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड में 90 आए वो मैथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को बोर्ड में 100, तो उन्होंने देखा वो 10 नंबर का डेविएट करते हैं इंक्रीजिंग साइड में। फिर कुछ बच्चों को ऐसे निकाला जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्री बोर्ड में 90 लेके आए लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है बोर्ड का, प्रेशर से या कुछ होता है वो सिली मिस्टेक करते हैं, कुछ करते हैं, 5 नंबर डेविएट हो जाते हैं डाउनवर्ड। दैट इज नोन एज डेविएशन। तो हम एक हमने क्या निकाला, 10 बड़े अच्छे बच्चों के, 5 एवरेज बच्चों के डाउन हो गए, तो 15 हो गया। 15 का 50% निकालो, 7.5, डेविएशन इज 7.5। अगर मैं हर डेटा में से प्लस माइनस 7.5 करता हूं तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट रिजल्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मीन, ठीक है ना। वो उसके बारे में बता रहा है। डेविएशन अपने आप में वो आपको बता रहा है कि मेरा पूछने का क्या तरीका है, अगर ये काम हो जाता है इतना परसेंट इंक्रीज या इतना परसेंट डाउन हो जाता तो क्या रिजल्ट आता है, ये है मतलब रेंज बता देता है आपको कि आप इतना डेविएट होता है प्लस माइनस। तो ये जो रिजल्ट देता है ये प्लस माइनस रिजल्ट देगा आपको कि अगर एक आर्बिट्री नंबर से डेटा को हम डेविएट कर रहे हैं तो प्लस माइनस ए का रिजल्ट आएगा आपका, जो भी नया वो आएगा मीन वो उसका रिजल्ट होगा कि इतना होने से एवरेज में इतना चेंज आएगा, ठीक है बेटा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? अब मीन डेविएशन अबाउट, हाँ बेटा बोलो बोलो, बोलते जाओ बेटा। Where बेटा? दिस वन बेटा, दिस वन, ये वाला, हाँ ये वाला ना बेटा। ये तो मैंने वो फॉर्मूला लिखा है जो मैंने पिछले इसमें लिखा था, ये वाला तो फॉर्मूला लिखा था। दिस इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई बाई एन, ये मीन का। तो जब मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ रहा हूं तो पहले आप जो गिवन डेटा है उसका मीन निकालोगे और उससे डेविएट करोगे, ठीक है। और जो ये सम निकालोगे वो मॉड का निकालोगे, ध्यान रखना मुझे मॉड का चाहिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, मुझे तो सबको पॉजिटिव बना के फिर ऐड करना है, ठीक है। तो मॉड वाले का आप निकालना है। दिस इज सेकेंड। देन आता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कैपिटल एम डिनोट मीडियन, एंड दिस इज समेशन एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई अगेन एम। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला बताओ बेटा फॉर अनग्रुप डेटा ओनली, ठीक है। अब मीडियन देखना कैसे निकालते हैं बेटा, बस ये लास्ट यहीं पे खत्म करता हूं मैं। मीडियन इज इक्वल टू अनग्रुप डेटा मतलब वही x1 x2 xn, ये अनग्रुप डेटा बेटा, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो मीडियन इज n plus 1 by 2th observation, right? And first step is what? First step is
write given data in ascending order, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख देते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद अगर ये n+1/2 लिखा ऑब्जर्वेशन व्हेन n इज ऑड, n का मतलब ऑड, यानी वी हैव 7 नंबर ऑफ टर्म्स, 9 number of terms, we have to use this one formula, median, and median is denoted by capital N. Now plus n by 2 plus 1 by 2 observation. This is when we have even number of terms. Even number of, clear बेटा? तो आज अभी यहीं तक करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और इसके बाद, ठीक है। चलो आज मैंने आपकी इतनी क्लास ले ली। ओके बेटा, मैम विल ज्वाइन केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। सर सेकंड फॉर्मूला किसके लिए था? ये बेटा सेकंड वन इज अबाउट मीन एंड थर्ड वन इज फॉर अबाउट मीडियन। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। हियर फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन डेटा, then only we can find out the mean deviation. तो mean deviation जिसके भी अबाउट आपसे पूछ रहे हैं पहले वो निकालना जरूरी है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, ठीक है। ओके, एंडिंग द क्लास नाउ।